17 minutes for my one son. I thought it was 70 minutes. Okay. Let me first thank Feroz for calling me. Just as I was telling him that I'm really sorry for giving him such a short notice. It's actually the other way. But I'm absolutely blissfully oblivious of the kind of film that he has made. But I think it's the tagline that it says the magic of giving. I think that's very important. That's what got me here. And what he emphasizes on in his film is that living is all about what you get, and life is all about what you give. And it's important to give it back to the society, give it back. When I say give it back, I don't mean it in a vengeful manner, but give it back as in it's almost like a return gift. I always admire people who are talented. I admire people who have the courage and the guts to do something different. I first and foremost, I must also congratulate you for making such a beautiful film, though I have yet to see the film, but the premise of the film is so beautiful. I'm sure the film is going to be a lot more beautiful than I imagined. And the fact that it has already won several awards across the world, and also the Berlin Film Festival, is it? Nominated and things like that. So I'm happy. I turned a director last year. I made my debut film, Heartless. You have to have, as I said, a lot of courage, a lot of heart to make a film. Especially if you're not a seasoned filmmaker, especially if you don't have producers backing you up and believe in what you want to say. So for that, Feroz deserves a huge round of applause. So if you can just I think we all need that encouragement when we are beginning, when we are starting out. You know, when people are looking at you with so much of expectation, and you always sort of very apprehensive whether I will live up to that expectation or not. More often, I suppose, I would say that when you believe in yourself and you believe in the subject as a director, you would always succeed, and you will be able to communicate and reach out to many hearts. So here's wishing you all the best. I wish I was part of your film, but there's always the next time. Thank you, Zara, for telling me that there is a wonderful filmmaker, and thank you, audience, because I feel more than anything else, it is the audience that makes a director or an actor or anybody else in this creative profession. So सबको सलाम और इस दुआ के साथ और इस शुभकामनाओं के साथ कि आप अपने इस वेंचर में बहुत ज़्यादा सफल हों और आगे भी आपको इससे बहुत जो ऑडियंस है उससे हौसला अफजाई हो और आपको और ताकत मिले और आप और पुरसर तरीके से और पुरजोर तरीके से ऐसी खूबसूरत फिल्में बनाएं। Thank you. That was a lot of Hindi, which I didn't get it. Can I call Feroz bhai to please give a bouquet to take a Can I also call Imtiaz bhai and Zara on stage, please? Zara, please. Imtiaz bhai. Zara is a very noted writer, and she just launched her book. Zara, you want to tell us? Yeah, a little about the book. Okay, I think the book is called The Forbidden One, and I think anybody who starts a new career, whether it is as a writer, as a director, or an actor, begin with, after all the rejections that you go through, the auditions that you go through, and the testing times, you're forbidden, right? Because rejections are not easy to handle. The times when you feel, do I have it in me, will I be able to prove myself to the world? I think you, my dear friend, are not forbidden anymore. You played it, and the film is right here. Can I have Imtiaz bhai give Zara the bouquet? That's nice. That's so nice. That's so nice. That's the magic of That's the magic of giving. So can we just go and watch the film? Yes. Yeah, please. Okay. So thanks.
are the lights off over here. मुतासर हुए और हमें लगता है कि हमें वी शुड टेक अ क्यू फ्रॉम दिस। और ज़िंदगी में हमेशा यही सिखाया गया है, चाहे आपकी अपनी निजी ज़िंदगी हो या कोई भी रिश्ता हो, जितना आप देंगे उतना ही आपको मिलेगा। I mean, ये खुदा की नेमत है और खुदा ने हमें अपने तरीके से हमें समझाया, जो कहते हैं कैसे हैं जरा कि नेकी करके जो दरिया में डालेंगे अभी, वही तूफानों में कश्तियां बनकर साथ देंगे हम कर। We have to understand life from a different perspective. It's very very important, क्योंकि लेना बहुत आसान होता है। कोई भी आपको गिफ्ट दे, पैसे दे या कोई कुछ भी दे, आप लेने के वक्त बहुत अच्छा लगता है। It's always आपके दिल की पहचान तभी होती है जब आप देना सीखें, और वो दिल उससे भी बड़ा होता है जब आपके पास कुछ नहीं हो और फिर भी आप दे रहे हो उसे। तो एक खुदा जो है वो रहमत करने के ऊपर बैठा हुआ है, जो वो सब देखता रहता है और वो देखता है कि कौन कितना दे रहा है और कौन कितना ले रहा है, और जो देता है उसे भगवान फिर भर भर के देता है, जैसा कि इन्होंने दिखाया अपनी फिल्म में। आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म एंड वकार बहुत खूबसूरत आपने काम किया है, जो भी फिल्म में है। जैसा कि मैं शुरू में कह रहा था कि बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत करेज चाहिए इस तरह की फिल्में बनाने के लिए। कमर्शियल फिल्में सब लोग बना लेते हैं या प्लेइंग टू द गैलरी इज़ वेरी इजी, पर इस तरह की फिल्म जो इन्होंने देखा, जो इन्होंने महसूस किया फिल्म में, जो अपनी ज़िंदगी में, उसको फिल्म में उतारने की कोशिश की, और वही है फिल्म इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। और अगर अपनी फिल्मों के जरिए आप कुछ अच्छी बातें कर सकते हैं और कुछ ज़िंदगियाँ बदल सकते हैं, सो आई थिंक दैट it's a commendable effort. Congratulations and thank you for giving us such a good effort. Shekhi, I would also like to ask Shehroz bhai how he entered this and what was his profession before this. This is the first time मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कैसे associate हुए? Actually, Shehroz is one of my best friends in Chicago for almost 33 years. So he actually started making this film, and he had some financial issues, and he reached out to me and then told me the script of this film, and basically I loved his script and made me encouraging to take the participation in this film and the producer. So again, thank you so much. Waqar bhai, would you like to say? मैं इन्हें जानता नहीं था कहीं से, बहुत ऐसा लगा नहीं किसी नए इंसान के लिए काम करें। मैजिक ऑफ गिविंग से मुझे याद है, देखिए किसी का सिक्का गिरा, पता नहीं किसका। थैंक यू सो मच। ये कहते हैं पहला रुपया कमाना मुश्किल होता है, मुझे 5 रुपया मिल गया। ये बच्चों में जो आप 5 रुपए ले रहे हैं। थैंक यू कुणाल। Yeah, good. Hi. The moment there was like, the moment it ended, the way it ended, there was some wow factor in it. And the only thing I wanted to understand is वो वैसा ही स्क्रीन पे आएगा कि नहीं, क्योंकि that is generally what generally वो मिस होता है generally when it is a debutant director or something. The narration of the script is कागज पे अच्छी लगती है कहानी, लेकिन स्क्रीन पे वैसी नहीं होती है। And the moment I've seen the completed film, it was like wow to the power of wow, like awesome it was. So I really am happy that like as Waqar also, like Waqar, I was also not, I didn't know Shehroz before this. He has actually seen a previous film of mine called A Silent Melody, and he has casted me for this. So thanks a lot, Shehroz. And Waqar was like extremely, he made the shooting feel like a picnic, like real. It was real fun. Like it was awesome, yeah. Being a senior actor, like I was like really getting a little tense before I was onto the sets. Senior actor है कैसे रहेंगे आप, आपसे भी बहुत बार पूछ रहा था मैं, like Waqar is a senior actor, like how is he generally on sets and all. I was worried, like it was really wonderful working with you. Yeah. It was a great team, great film, and really delighted to be part of this. Thanks. एक बार जोरदार इनके लिए ताली बजाएं हमारे बीच। काबिल वो बहुत ही मशहूर कलाकार हैं। He's a great actor. We always admired his work. और
कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, और मुझे लगता है कि जब ये कहेंगे तो उसका ज़्यादा असर होगा। सबसे पहले इस माफी चाहूँगा मैं देर से आया, और उम्मीद करता हूँ कि मुझे देखने का मौका मिलेगा। वकार इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड माइन। बहुत पहले मुलाकात हुई हमारी, हमने साथ में काम किया था एक शो में जिसका नाम था साजी बेवला। It is so lovely to know that Waqar is so excited about this project. I wish him the very best. I wish the producer the very best. I hope you'll go forward and you win many, many more awards. I believe you already have won about 4 awards. I would urge everybody to please get on to YouTube, see the film and share it as much as possible. Please support Waqar and his new team. Wish them the very best by making sure that there are enough viewerships on YouTube. God bless you. All the best. Thank you everybody for coming here. Can I request? Shekhar, one question you have to answer was, you can narrate some incident where you have given and you have been very good about it. Yes, there have been so many instances where I think जब आप कोई नेकी का काम करते हैं, उसकी गरिमा तभी बनी रहती है जब आप उसके बारे में बात नहीं करते। So I think I know, I do understand, but ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि मैंने किसी को दिया या किसी की मदद की। I think all of us, in our own sweet way, we help people as and when we, and actors are an emotional lot. और हम लोगों को तो जब भी मौका मिलता है, we like to give, we want to give, and especially after this film, you would like to give a lot more than you have been giving, yes, all of us, and this is something, and this is the message that should go across to everyone from all of us, on behalf of the entire world and the universe, that you do good and goodness comes back to you in a much bigger way. So, and it's not to get back that you give because you want to give, it comes straight from the heart. आप इसलिए नहीं देते हैं ये सोचिए खुदा मुझे ज्यादा दे, वो फिर खुदगर्जी हो जाती है। आप इसलिए देते हैं कि आप क्योंकि एक नेक इंसान है, और वो नेकी हम सब में होनी चाहिए, और वो बात भले ही खुदा हमें दे न दे, इस जन्म में दे बाद में दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपने किसी की जिंदगी को संवारा या किसी की मदद की या किसी के दुखते दिल को पर हाथ रखा, किसी की पीठ थपथपाई, किसी को आर्थिक रूप से मदद किया। आई थिंक ये सब हम लोगों को करते रहना चाहिए। वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट विद द पोजीशन दैट वी आर इन, ये तो जो रोल अदा कर रहे थे इसमें ये तो खुद देने के लायक नहीं थे, फिर भी इन्होंने दिया। मुझे दुख इस बात का होता है जिन लोगों के पास इतना है फिर देने का कोई दिल नहीं होता है, देने की कोई मंशा नहीं होती। भगवान ने अगर हमें कुछ दिया है और किसी खास मुकाम पे लाके खड़ा किया है तो उसके पीछे एक संकेत है, और उसके पीछे मंशा ये है कि आप लोगों को दें। तो इससे एक बहुत बड़ा सबक जो आपने सिखाया उन लोगों को कि ये ज़रूरी है कि जो कुछ भी आपसे बन पड़ता है, जैसे भी जिस तरह से फिजिकली, मॉनेटरीली, इमोशनली, अगर आप किसी को कुछ दे सकते हैं तो देने में कभी हिचकिचाइए। What a fantastic thing you have done. You have actually backed up a man who was in need to make this film, and without you, I think without your support, you would probably never be able to make it. Definitely. Thank you for coming late. And आप YouTube जो है YouTube करोगे। Done sir. Done sir. सर जी, थोड़ा सा एक पिक्चर हो जाए। नरेश, बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से ये शॉर्ट फिल्म थी इसलिए मैं शॉर्ट नोटिस में आ गया। जब भी कोई अच्छा काम करता है मैं ऐसा समझता हूँ कि हम सबका फ़र्ज़ है कि हम उसकी मदद के लिए आगे बढ़ें, उसे सपोर्ट करें। सपोर्ट को सबको ज़रूरत होती है, ख़ासतौर पे एक नए डायरेक्टर को हमारी इंडस्ट्री में एक खड़े होने की जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है। और जब मैंने इस फिल्म का प्रेमाइस सुना, जो आधार है जिस पर ये फिल्म बनाई गई है, जो असास है इस फिल्म की, उसको सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक बहुत ही नेक ख्याल से इन्होंने ये फिल्म बनाई है कि द मैजिक ऑफ गिविंग। ये हम आज उस दौर में पहुंच गए हैं जहां सबको लेने में बहुत मज़ा आता है। ये मुझे दो, गिफ्ट दो, पैसे दो, घर दो, ज़मीन दो। देने का किसी के पास वक्त नहीं है, देने का किसी के पास सोच नहीं है, देने की किसी की मंशा नहीं है। ऐसे वक्त में इंसान ने इतना खूबसूरत सोचा और उस फिल्म को
देखने के बाद मैं यकीन के साथ कह सकता हूं और पूरे पुख्ता तरीके से कह सकता हूं कि बहुत सारे दिल बदलेंगे और जो अब तक नहीं देते आए हैं वो भी अब लोगों की मदद करेंगे और देना शुरू करेंगे. सो आई एम रियली इम्प्रेस्ड और मैं इनको ढेरों बधाइयाँ देना चाहता हूँ इस फिल्म के लिए. जी जी जी, ऑलवेज 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 ऑलवेज. ये बड़ी ताकत है हमारी इंडस्ट्री में, जिसको लोग एक बहुत सतही तौर पे कभी कभी देखते हैं कि ये इंडस्ट्री सिर्फ एक ग्लैमर की दुनिया है, चकाचौंध की दुनिया है, पैसे वालों की दुनिया है, शोहरत वालों की दुनिया है. लेकिन इस दुनिया के पीछे ऐसे ऐसे दिल हैं जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते. वो दिल जो हमेशा दूसरों के लिए धड़कते हैं, वो दिल जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं. और इंडस्ट्री में, न सिर्फ इंडस्ट्री में जब भी कोई आपदा आई, बल्कि बाहर भी जब भी कोई मुसीबत या दिक्कत आई, हमेशा इंडस्ट्री वाले सबसे पहले साथ आते हैं और साथ मिलके किसी की मदद करते हैं. तो उस इंडस्ट्री को सलाम. और मैं समझता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में, पिछली ज़िंदगी में बहुत दिया होगा, इसलिए मुझे ये मिला है कि मुझे एक एक्टर के रूप में एक ज़िंदगी मिली है, एक अभिनेता के रूप में ज़िंदगी मिली है. तो दैट्स द मैजिक ऑफ गिविंग. और जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा कि नेकी कर जो दरिया में डालेंगे अभी, तो वही तूफान में कश्तियाँ बनकर कभी साथ देंगी आपका कभी. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप नेकी कर दरिया में डालें. ये न सोचिए कि मैं अब ये दे रहा हूँ, मुझे ये मिलेगा या मिलना चाहिए. जो आपने करके डाल दिया, खुदा आपको देगा. ना भी दे तो कोई बात नहीं. आपको इस बात की खुशी, देखिए दूसरों की मदद करने से, दूसरों की हेल्प करने से जो उसके चेहरे पे जो खुशी आती है ना, वही आपकी ज़िंदगी का सरमाया है. उसी से ज़िंदगी आगे बढ़ती. पैसा दौलत शोहरत बहुत लोगों के पास है. वो खुशी, वो संतोष, वो रूहानी संतोष, वो बहुत ज़रूरी है. सो द मैजिक ऑफ गिविंग इज़ ऑल अबाउट गिविंग एंड फीलिंग कंटेंट एंड फीलिंग हैप्पी. जी, the art of giving. Yes, art of living is actually the art of giving. Unless you don't give, you won't live. So the art of giving is the art of living. जी, एब्सोल्युटली. मैं इनको जानता नहीं था, मैं इनको पहचानता भी नहीं हूँ, पर मुझे किसी ने बताया कि ऐसी ऐसी फिल्म है और वो चाहते हैं कि आप आएँ. और मुझे ऐसा लगा कि मुझे अगर मेरे आने से इनको खुशी मिल सकती है, वो सपोर्ट मिल सकता है, तो क्यों नहीं. सो आई फेल्ट रियली हैप्पी. हालांकि मुझे कहीं और भी जाना था, लेकिन मुझे लगा कि इनको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है. I have just directed a film, Heartless, जो अभी कलर्स पे आई भी इस संडे को. It's called Heartless, that film. हाँ, so I'm coming to that. और उसके बाद I just needed a break because it takes time to write another script. So I'm working on another script called Bombay Dying. I think कि सिर्फ इंसान ही नहीं मरता, कभी कभी शहर भी मर जाता है. जो शहर के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो किसी वजहों से जो शहर की जो खूबसूरती है, जो शहर का जो रूह है, वो मर जाता है. सो बॉम्बे डाइंग वो एक्चुअली दरअसल एक ऐसे कपल की कहानी, हिंदू मुस्लिम, जो इट्स सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द 1993 राइट्स, जिसमें इनको प्यार होता है, जो दिक्कतें आती हैं और किस तरह से वो शहर फिर बॉम्ब ब्लास्ट के बाद धीरे धीरे मर रहा है. और जो भी घटनाएं यहाँ पर हुई, चाहे ट्रेन ब्लास्ट हुआ, 26/11 हुआ, रेप हुए, और ये शहर जहाँ रात में आदमी और लड़कियाँ जो है बेबाकी से निकला करती थी, अब वो शहर थोड़ा थोड़ा सहमा सा रहने लगा. बहुत सारी ऐसी वारदातें हुई जो बम्बई शहर में पहले नहीं हुई थी, जो अब मुंबई है. तो शहर का नाम भी बदल गया. तो बहुत सारे इस पे ये बदलाव इस शहर ने देखा. समवेयर आई फेल्ट कि ये जो शहर मर रहा है उसको ज़िंदा रखने की भी ज़रूरत है, और उस वजह से मैं ये फिल्म बना रहा हूँ. और अभी एक प्ले भी कर रहा हूँ जिसका नाम है एक मुलाकात दीप्ति नवल जी के साथ, जो साहिर लुधियानवी और अमृता प्रीतम के एक अनरिक्वेटेड प्यार की कहानी है. Then there is another play that I'm doing. I'm planning something for television also. There is something that I'm doing for radio. तो जितने मीडियम है मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ. एक छोटी सी जिंदगी है, उसमें एक एक्टर ग्रीडी होता है और सब कुछ करना चाहता है. So I'm exploring all avenues. I think और लोगों को इनकरेज करना चाहिए. फीचर फिल्म्स तो लोग बहुत बनाते हैं, पर शॉर्ट फिल्म्स में एक बड़ी बात एक छोटे समय में और छोटी फिल्म के द्वारा आप कैसे कह सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले बहुत अच्छे शॉर्ट फिल्म मेकर्स थे, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स थे. वो इट्स अ डाइंग आर्ट. कहीं ना कहीं हर
इंसान जो है बड़ी फिल्मों की तरफ, बड़े स्टार्स और ग्लैमर की तरफ भागता है। इस तरह का नेक काम और समाज को जगाने का काम शॉर्ट फिल्म्स के ज़रिए ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरी लोगों से अपील भी है कि वो आगे आएँ, जो ख़ासतौर पर क्रिएटिव लोग हैं, जो डायरेक्टर बनना चाहते हैं और आगे आएंगे तो उनकी मदद के लिए लोग अपने आप सामने आएंगे और वो अपने मकसद में हमेशा कामयाब होंगे। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले तो जितने भी शॉर्ट फिल्म्स बनते हैं ज़्यादातर इतने सेंसेशनल होते हैं, इतने सेंसेशनलाइज होते हैं उनके सब्जेक्ट्स, दे रियली डोंट टच ऑन द ह्यूमन एस्पेक्ट. It's all about a gimmick or some idea that can titillate. It's nice to see that this film was an attempt to deal with human emotions and a beautiful emotion which has got to do with giving. शेखर साहब ने अभी जैसे आपसे कहा कि लोग तो लेते हैं, उनको देना सीखना चाहिए. यकीन के साथ मैं आपको कहता हूँ, आप चाहे इतना छोटा भी दें, मगर जब आप देते हैं, जो खुशी देने में होती है वो खुशी लेने में नहीं होती है. The very fact that this film has been produced by a new producer who has got nothing to do with the film industry is very commendable. It is very heartening to know that he took this attempt, and there were lots of people who were ready to back him up, and the final product was something that was fabulous. I wish them all the best, and I hope many such films will be made, not only as short films but as feature films also. देखिए, सबसे पहले तो ये जो ग्रीड है कि मैं अगर कुछ अच्छा करूं तो मुझे आगे जाके कुछ मिलना चाहिए. अगर हम इस थॉट से थोड़ा दूर होके बस दे दें, मैं मानता हूं कि आखिरत में अगर यहाँ नहीं मिले तो आखिरत में आपको ज़रूर मिलेगा, बहुत मिलेगा और कई गुना आपको मिलेगा. देखिए, फॉर अ न्यू प्रोड्यूसर टू एंटर द मार्केट, आई थिंक ये एक बहुत अच्छा मार्केट बन गया उसके लिए, जहाँ उसकी इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती है. वो छोटा इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी एक पिक्चर बना सकता है, उसकी पहचान बन सकती है. वो अपने प्रोडक्ट को एक मार्केट में ले जा सकता है जहाँ लोग उस पिक्चर को देखेंगे, उसे जज करेंगे, एंड मे बी बेस्ड ऑन दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल associating with him for his next project. So I think short film is one of it's a blessing in disguise for newcomers who want to become producers, directors, writers, actors. I think it's fabulous. फिलहाल मैंने अभी एक नया शो साइन किया स्टार प्लस के लिए. We are hoping to come on air very soon, I think this month. Please wait and watch. Thank you.